labeling and what is the meaning of packaging. What are the basic features of that? And today I am going to discuss about branding, right? ब्रांडिंग क्या होता है, ब्रांड का मतलब क्या है, ब्रांडिंग का मतलब क्या है, रूरल एरियाज में ब्रांडिंग किस तरीके से यूज किया जाता है, एंड कुछ कंपनीज के एग्जांपल, जैसे आपके एलजी का एग्जांपल होगा, ठीक है, नाइल शैम्पू का एग्जांपल होगा, दैट हाउ दे यूज देयर ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी. ओके, सो first of all, I just want to ask that what is the meaning of labeling and packaging? Who is going to tell me in brief? Who is going to tell me in brief? Yes, Piyush. Yes. Ma'am, packaging involves two activities of designing a product, the container of a product, wrapper of a product, label of packaging, primary package. It's hold the product, and secondary primary packaging. Second one is primary packaging. After that, secondary package, which holding the primary packaging. And shipping packaging, it helps carry the product from one place to another. Example, cabbaged box, corrugated boxes, corrugated boxes are various functions of packaging. Product description, it covers the messages. Product image, brand image, product quality. Product value, beautiful packaging increase the value of product. शिपिंग के लिए पैकेजिंग होता है, सेकेंडरी एंड प्राइमरी पैकेजिंग. लेबलिंग सब बता दिया आपने पीयूष? Labeling is a kind of information. Yes, who is going to add on something in this? What are the basic features of a good packaging and how it is utilized? Who is going to tell me about the good packaging features? Raise your hand. Yes, Priya. Ma'am, the feature of good packaging is attractive, distinctive, visibility, and it should be economical. That's all. Okay. What is the meaning of labeling? Who is going to tell me about it? What is the meaning of labeling? Raise your hand. Who is going to tell me about the labeling? Yes, Rajat. Ma'am, it's in labeling. It's a description about product, the manufacturing date, expiry date, and everything related to products. That is a kind of small description about the product, but that should be in short. That should be clear. So tell me about the features of the labeling. What are the good features of the labeling? What is the feature of a good labeling? Yes, Rajat, you can tell me. Good. क्या बोली थी फिर से बोलिए? अच्छे labeling का क्या features है? What is the features of a good labeling? Ma'am, easy to read हो. Easy to read, easy to understand for people. Minimum words में बहुत ज़्यादा चीज describe कर दे. और इतना ही मेरे दिमाग में आ रहा है, नहीं याद है. Easy to understand, proper words, shortcut words, important instructions, how to use instructions should be there, toll-free number should be there. So all these are the basically basic features. We can say that good features of the labeling, right? That is a kind of description, that is a kind of information which company is conveying you about the product, right? Just imagine if you are purchasing an acid from the market. I'm not talking about the industrial acid. I'm talking about the normal acid that everyone is purchasing that for cleaning the washrooms and all. So if someone is purchasing it, okay, and there is no information regarding to it, like what is how to use, and that definitely that is a harmful product, right? So if nothing is written in that particular bottle, what do you think, that is it okay or is it fine that if we are keeping it in our house
and we have so many children in our house, that is okay? क्या लगता है कि ठीक है वो, and the people are not as such educated, तो क्या लगता है कि आपको कि विदाउट लेबलिंग वाले प्रोडक्ट्स का क्या सिनारियो होगा? विदाउट लेबलिंग वाले प्रोडक्ट्स सेफ है आपके घर में ऐसे रखना? जस्ट इमेजिन, is it safe to keep these kinds of product in the house where there is no labeling, there is no information about the product? For example, if you are purchasing the medicines and there is no information regarding to its manufacturing and expiry date, is it relevant to purchase it, or is it okay if we are consuming it? क्या वो आपके लिए ठीक है जब आप उसको विदाउट एक्सपायरी डेट और विदाउट मैन्युफैक्चरिंग आप कंज्यूम कर रहे हो? नो. So just imagine, as such, the packaging is important. Labeling is also important because it conveys the message and information which is related with our health, which is related with our consumption level. Okay. So these are the basically packaging and labeling which we completed in the last class. Today I am going to tell you some more packaging strategy which is used in the rural areas, and after that we'll start with the branding. Okay. So what is the packaging strategy which is used in the basically rural areas? If we are talking about the packaging, the one council which make research, and that council name as National Council for Applied Economics, right? 1998 में उन्होंने एक research किया packaging के ऊपर, and what they found that जो low income level तो सबसे ज्यादा है ही हमारे rural areas में, और उनका कंजप्शन भी बहुत हाई है. ऐसा नहीं कि वो लो इनकम है तो उनका कंजप्शन हाई नहीं है, दे आर कंज्यूमिंग द बेसिक प्रोडक्ट्स. एंड ये चीज देखा जाता है कि जो प्रोडक्ट छोटे यूनिट और लोएस्ट यूनिट के होते हैं वो जल्दी कंज्यूमर जो है अट्रैक्ट होते हैं, रूरल कंज्यूमर्स. तो सबसे वहां पर कुछ स्ट्रैटेजी जो बनाई गई रूरल एरियाज में, दैट इज द स्मॉल पैक. ठीक है, स्मॉल पैक यानी छोटे छोटे पैकेट्स में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हुए. ये तो आप लोग सबको हम लोग पहले ही हमने क्लियर किया, फर्स्ट स्मॉल पैक्स. सेकेंड जो है दैट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द रिटेलर्स एज वेल. वाई इट इज यूजफुल फॉर रिटेलर्स? क्योंकि जो रूरल एरियाज में ज्यादातर जो छोटे छोटे दुकान होते हैं, बड़े दुकान नहीं होते हैं, तो उनके लिए डिस्प्ले करना ज्यादा डिफिकल्ट ना हो प्रोडक्ट को, इसीलिए उनके लिए छोटे पैकेट्स वो आराम से आगे शो कर देते हैं प्रोडक्ट्स को, और ताकि कोई भी कंज्यूमर जो है, क्योंकि लिटरेसी रेट हाई नहीं है वहां पर, राइट, तो उनके लिए बहुत ढूंढना मुश्किल होगा प्रोडक्ट को, कह रहे मुझे वो दीजिए, ऐसे दीजिए. दे आइडेंटिफाई इट इन अ वेरी डिफरेंट वे. रेड कलर वाला वो पेज दीजिएगा, लाल रंग वाला. तो लाइक दिस वे दे आर कन्वेइंग द मैसेज. सो डिस्प्लेइंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इफ योर शॉप इज इन द रूरल मार्केट. अगर रूरल मार्केट में आपका दुकान है तो डिस्प्ले करना प्रोडक्ट को बहुत जरूरी है. तो ऐसे केस में जो स्मॉल पैकेट्स है उनको आप इजिली डिस्प्ले कर सकते हैं, इसलिए स्मॉल पैकेट्स उनके लिए भी इजी था. नेक्स्ट है कि स्मॉल अफोर्डेबिलिटी की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली वहां के लोगों का इनकम लेवल और डेली वेजेस वाले लोग ज्यादातर हैं, तो इसीलिए उनका कोई पर्टिकुलरली प्लान्ड कोई परचेज नहीं होता. जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं इन अर्बन एरियाज, द पीपल आर मेकिंग लिस्ट एंड ऑल, बट दे आर परचेजिंग द प्रोडक्ट्स ऑन डेली बेसिस बिकॉज देयर अर्निंग इज ऑन डेली बेसिस. सो बेसिकली उनके लिए छोटे पैकेट्स को लेकर जाना दैट इज कंपैरेटिवली इजी एंड अफोर्डेबल. Right. For example, if a person is earning 100 rupees per day, then how could he buy a 70 rupees packets biscuit, right? It is not easy to buy that. So इसीलिए they can buy 2 rupees वाला packet, whatever is suitable to their income. So affordability is also important. According to the packaging, they are basically showing that you can able to buy this 2 rupees packet वाला biscuit. ठीक है. स्टोरेबिलिटी इज ऑल्सो ओके बिकॉज इन द बेसिकली वहां पर जो रूरल एरियाज है वहां पर सेमी पक्का घर और पक्का घर, मतलब ज्यादातर क्या होता है कच्चा घर वगैरह होते हैं. ऐसे केस में प्रोडक्ट जल्दी स्पॉइल होने के चांसेस होते हैं, वाटर एंड ऑल. तो ऐसे केस में वो डेली वाले परचेजेस करते हैं, तो स्टोरेबिलिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. और बस ये 3-4 चीजें थी, और एक तो और भी चीजें हैं, जैसे कुछ कंपनीज के आप नाम लिख सकते हो जिन्होंने छोटे छोटे पैकेट्स के प्रोडक्ट वो लेकर आए हैं. जैसे आपका डेयरी वाइटनर जो है, डेयरी वाइटनर जो आपका जेके डेयरी है, वो डेयरी वाइटनर का सैशे लेकर आया, दैट इज फॉर 6.5 रुपीज, 6 रुपीज 50 पैसे, 6 रुपीज 50 पैसे. एंड विक्स वेपोरअप जो है वो वहां पर 5 ग्राम के टाइनी डब्बे में है, मिलता था. अभी तो उसका 5 या 6 रुपए रेट हो गया होगा, और वो जेके वाइटनर का 10 रुपए रेट हो गया होगा. और गोदरेज जो है वो कुछ शैम्पू बेचता था 1 रुपए 2 रुपए के, या फिर आपके और भी है पान पराग वगैरह जो है वहां पर,
टोबैको का सेल भी बहुत ज्यादा है वहाँ, तो खैर वो तो एक अलग चीज है, उसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है। बस ये सारी चीजें हैं जो पैकेजिंग स्ट्रैटेजी जो है वो रूरल एरियाज में यूज होता है, स्मॉल पैकेट्स, एंड दैट इज मतलब फीचर्स हैं कुछ प्रोडक्ट के पैकेजिंग के स्ट्रैटेजीज के। और एक चीज और भी है कि जैसे रूरल एरियाज में जो प्रोडक्ट्स पे लेबलिंग, अगर हम लेबलिंग की बात करें तो सबसे बड़ी बात याद रखिएगा कि हमेशा रूरल एरियाज में आईटीसी और एचयूएल के प्रोडक्ट को छोड़ के बाकी मेजॉरिटी रीजनल लेवल के प्रोडक्ट ज्यादा सेल होते हैं, यानी कि जो रीजन के प्रोडक्ट ज्यादा फेमस है, या फिर बिहार की में भी कुछ अलग अलग कंपनीज है, जैसे नीलकमल मैंने बताया था उसमें सत्तू का, वो क्या है, वो एक रीजनल कंपनी है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में सेल होता है। तो रीजनल कंपनी ज्यादातर फोकस करती है रूरल एरियाज में, तो वो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं जिसमें लेबलिंग वो दोनों लैंग्वेज में करती है, यानी हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, और कई बार कुछ लोकल लैंग्वेजेस में तो अभी नहीं आए, लेकिन हिंदी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स में वो लेबलिंग कर देती हैं। ठीक है, why they are doing that? Because the people in the rural areas are not as such literate and they are not able to learn the मतलब read the English properly. So how to use and everything is also written in the Hindi as well as in English. ठीक है, तो ये भी एक क्राइटेरिया जो है वहां पर यूज किया जाता है लेबलिंग के लिए। तो लैंग्वेजेस जो है वो इस तरीके से यूज होते हैं, और जो मतलब हर चीज जो कॉजन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ हिंदी में भी एक्सप्लेन होता है और प्योर हिंदी में। तो लेबलिंग और पैकेजिंग क्लियर हो गया रूरल एरियाज के हिसाब से क्या होता है के हिसाब से वहाँ पे लेबलिंग रीजनल लैंग्वेज में होते हैं या फिर हिंदी लैंग्वेज में होते हैं। और पैकेजिंग जो है वो वहाँ के लोग जो है वो कलर वाइज भी पैकेज को आइडेंटिफाई करते हैं। तो शॉपकीपर्स या जो भी है उनका काम होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को शो कर पाए, और वो नाम जो पैकेजिंग रियल प्रोडक्ट है वो उनके नाम वगैरह अगर पीपल नहीं जानते तो वो कलर के थ्रू ही आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसी की वजह से ये क्लियर होना प्रॉब्लम चाहिए। है, ये एक प्रॉब्लम है कि वो कलर से आइडेंटिफाई करे, दे कांट एबल टू टेक द नेम ऑफ द ब्रांड, सो इट्स बेटर टू डिस्प्ले इट ऑन द counter. So the packets of small packets you can display it easily, but you cannot display the large packets in one counter, right? So that's why the small packets are also basically useful for the retailer as well, right? ठीक है, आगे आगे बताइए नाम। और कुछ कुछ कंपनियां जो है वो छोटे वहाँ के लोगों का मैम इनकम कम होता है लेकिन कंजम्पशन वहाँ पे ज्यादा होते हैं, और इसी वजह से मैम कुछ कुछ कंपनियां जो है वो प्रोडक्ट के छोटे लेवल भी लाए हैं, जैसे विक्स है और डेयरी वाइटनर वगैरह जो है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है पैकेजिंग से पहले? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांड? ब्रांड इज अ सिंबल, साइन, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स, कलर्स, ठीक है, लोगो, तो ऑल दीज थिंग्स नोन एज ब्रांड। ब्रांड का मतलब क्या होता है? जिसमें नाम हो, नाम आपका, जैसे कि एग्जांपल यूसीबी है, यूनाइटेड कलर ऑफ बेनेटन, दैट इज अ नेम ऑफ अ ब्रांड, राइट? एंड जैसे यूएस पोलो हो गया, बाटा हो गया, ऑल दीज आर द नेम ऑफ द ब्रांड। तो उसमें नेम होना चाहिए, साइन हो, सिंबल हो। देखा है ना आप लोगों ने नाइकी का सिंबल कैसा होता है? ऐसे टिक, राइट वाला टिक। तो सिंबल्स हो, कोई डिजाइन हो, या फिर सबके कॉम्बिनेशन मिक्स करके हो, तो ये सारे बेसिकली ब्रांड है। ठीक है, ये ब्रांड है। क्या है ये सारे? ये ब्रांड है। ब्रांड कोई नाम हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कोई साइन हो सकता है, कोई कलर हो सकता है, या ये सारे चीजों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जो बेसिकली ये सारे सिंबल जो है वो क्या कर सके, वो आपको बेसिकली आइडेंटिफाई करवा सके कि ये एक पर्टिकुलर ब्रांड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज वियरिंग अ टी शर्ट एंड देयर इज अ साइन, टिक साइन, we able to identify that this brand is Nike, right? And if someone is wearing a like Bata, then the B and the round, this is the logo of the Bata. So that is known as brand. Just wait for a sec. ठीक है, अब जैसे आप एग्जाम्पल में, ये साइन क्या होता है? देखो ये बहुत गड़बड़ साइन बन गया, बट दिस ये नहीं होगा। नाइकी हो गया ये ऐसे राइट वाला साइन, बाटा में ऐसे बी करके और फिर ये ऐसे करके पूरा राउंड इस तरीके से होता है। दिस इज अ लोगो ऑफ इट, राइट? And what color combination they are using? The color combination they are using white and red. Bata are using white and red combination, right? If we are going toward the MACD, अगर हम MACD की तरफ बढ़े तो उसका लोगो क्या है? मैकडी का लोगो, मैकडी का ऐसा कोई लोगो नहीं है, बट उसका एम जो है, मतलब मैकडी रिटन होगा, एम जो है वो एक बेसिकली उनका लोगो की तरह लिया जाता है।
M, और उनका कलर कॉम्बिनेशन क्या है, रेड एंड येलो। कितने लोग गए हो यहाँ पर मैगडी? रेज योर हैंड। मैगडी नहीं गए हो कभी भी? देयर इज दैट, आई थिंक दैट इज इन गांधी मैदान, right? ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डोमिनोज, देन देयर लोगो इज लाइक a square and there is a dot red and white, I guess there is dot, that is the logo of that. So because this is a kind of brand, symbols and all these are basically for identifying the particular brand. मतलब brand एक actual में ये सारे signs वगैरह हैं जिसको हम देख करके समझ पाते हैं कि ये कंपनी है, ये कपड़े की अच्छी फेमस ब्रांडेड कंपनी है। तो ब्रांड क्या होता है समझ में आ गया होगा। ब्रांड इज समथिंग, लोगो, साइन, लेटर्स, ठीक है। तो इसमें लिखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांड। सबसे पहले लिखिए ब्रांड क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांड। ब्रांड इज अ नेम, ब्रांड इज अ नेम, टर्म, साइन, symbol, design. Brand is a name, term, sign, symbol, or design, or combination of all these, that identifies the manufacturer, company, seller, manufacturer, company, seller of product or service, A brand is a name, term, sign, symbol, design, or combination of all these that identifies the maker या फिर बोल सकते हैं manufacturer, company or seller of product or service, ब्रांड का मतलब तो समझ में आ गया होगा, ये सिंबल हो सकता है, साइन हो सकता है, कलर हो सकता है, ठीक है। और ये किस चीज में आइडेंटिफाई करने में हेल्प पड़ेगा कि भाई पर्टिकुलर ये कौन सी कंपनी है और कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ डील करती है। जैसे व्हेन वी आर वाचिंग एनीवन, लाइक हम लोग डोमिनोज के डिलीवरी बॉय को देखते हैं, देयर यूनिफॉर्म, देयर क्लोथ्स, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ ब्रांडिंग। दे आर शोइंग दैट उनके इवन क्लोथ पर भी उनके ब्रांड का लोगो लगा होता है, राइट। So we are able to identify that this is basically belongs to the Domino's company and they are basically providing pizza or they are offering pizza as a product. So brand का मतलब क्या होता है, सबको क्लियर हो गया? What is the meaning of a brand? उत्सव, but what is the meaning of brand? बताइए। मैम, ब्रांड इज अ नेम, टर्म, साइन, सिंबल, डिजाइन और कॉम्बिनेशन of all these that identifies the manufacturer, company, seller of product or service. वो तो मैंने लिखवाया है, वो तो बोल दिया। अब मुझे समझाओ, मैं स्टूडेंट हूँ, तुम टीचर हो, मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांड। मैम, ब्रांड उसको कहते हैं जैसे हम लोग किसी के ब्रांड के लोगों से पहचान लेते हैं या कलर से पहचान लेते हैं या यूनिफॉर्म से, जैसे आप बताइए अभी। हर चीज़ में मैम कहीं ना कहीं उनका ये एडवर्टाइजमेंट रहता है कि ये मेरा ब्रांड है, उससे पहचानते हैं। ठीक है, गुड। हु इज गोइंग टू टेल मी नेक्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांड? ब्रांड का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे नेक्स्ट? जस्ट थिंक दैट यू आर अ टीचर एंड आई एम अ स्टूडेंट, जस्ट इलैबोरेट मी लाइक दैट। मुझे समझाइए, कौन समझाएगा? टेल मी। It is a special type of thing which is used by a company to attract the people by his logo or name or color. For example, अरे मुझे समझाओ, वो तो तुमने बोल दिया, दैट इज ओके। मैम, ये एक स्पेशल यूनिक कोड होता है कंपनी का, मतलब जैसे भी कोई कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए बाय हिज कलर, लोगो या स्पेशल टाइप जो भी कंपनी का डिजाइन किया हुआ होगा। और फॉर एग्जांपल आप जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं
अभी हाल फिलहाल में बैंक का पीएनबी का ले सकते हैं, क्योंकि उसमें भी पीएनबी का पीएनबी ही आता है और उसमें भी कलर यूज किया जाता है रेड और येलो। और मोस्ट प्रोबेबली सारी कंपनियां रेड और येलो पे ही क्यों करती है, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है सब कंज्यूमर को। ओके और वो ओके अभिषेक, गुड। एनीवन एल्स? यस उत्सव, बहुत लोग जो होते हैं उनको नॉलेज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव नॉट बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ something which is visible, right? Something which is visible. I'm not talking about intangible. Something which is visible and we are able to identify it, like, oh god, this is LG. Okay, this is a particular LG brand which are selling the electronic items. So that is a basically aim of the branding. That is a part of advertisement as well. बट ब्रांडिंग हम प्रोडक्ट के ऊपर करते हैं, तो हम ये प्रोडक्ट डिसीजन में इसको लेते हैं। लेकिन ब्रांडिंग का मेन मकसद क्या होता है? एडवर्टाइज कराना और आइडेंटिफाई करवाना अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांड? सबको क्लियर हो गया ब्रांड क्या होता है? ठीक है, कलर से भी हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लोगो से। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ब्रांड जब भी हम पढ़ रहे हैं तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी उस किसी पर्टिकुलर ब्रांड कब बनता है, जब हम कोई लोगो को रजिस्टर करा लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि यूएस पोलो है, उसका एक लोगो है ऐसे गोल राउंड और ऐसे, ठीक है, या फिर बाटा है बी एंड द राउंड। अब ये जो लोगो है, नो अदर कंपनी जो है इसको सेम इमिटेट नहीं कर सकती, सेम टू सेम कॉपी नहीं कर सकती, वो एक लीगल क्राइम है। तो वो कोई भी कंपनी जब भी अपने लोगो को रजिस्टर करा लेती है, दैट बिकम्स अ ट्रेडमार्क। उनका वो एक ट्रेडमार्क होता है और लॉन्ग टर्म तक वो उसी ट्रेडमार्क को लेकर आगे तक बढ़ती है। कभी फ्यूचर में लगेगा कि चेंज कराने की जरूरत है, तो कुछ लोग लोगो चेंज कराते हैं, बट नॉट श्योर। ज्यादातर जो रजिस्टर्ड जो लोगो होगा, दूसरी कोई भी कंपनी सेम टू सेम कॉपी नहीं कर सकती। बाटा के जैसे और भी कंपनीज है, लाइक खादम्स आर अवेलेबल, मेट्रो वॉक इज अवेलेबल, देयर आर सो मेनी ब्रांड्स ऑफ बेसिकली सैंडल्स एंड फुटवेयर्स, राइट? सो यहाँ पर सबके लोगो अलग अलग होंगे, बाटा जैसा सेम सारे लोग कॉपी नहीं कर सकते। हमेशा याद रखिएगा कि ब्रांड इज नेवर कॉपीड बाय अनदर कंपनी। और जो कॉपी करते हैं ज्यादातर वो स्प्यूरियस गुड होते हैं, फेक गुड होते हैं, और उनके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? जब भी whenever the logo is registered, then that becomes a trademark of the company and no other company can copy that particular brand logo, color, design, terms. कोई भी दूसरे का बेसिकली ये कॉपी नहीं कर सकता है लोगो। ठीक है, अब ये तो ब्रांड था, लेकिन कभी सोचा है कि कंपनी जो है वो ब्रांड ऐसी तो कोई डिजाइन या लोगो ऐसी तो नहीं लेकर आ जाती होगी? कुछ ना कुछ उस लोगो से मीनिंग निकलता है, हमेशा याद रखिएगा। द लोगो इज ऑलवेज, लोगो और सिंबल ऑलवेज शो समथिंग, गिव सम मैसेजेस, राइट? and making that particular logo, color combination, design is very difficult for the company, and the branding is basically that is a strategy or process which used by the company for making logo, sign, color combination and all. Brand jo hai, that is logo, term, sign and all, these are brand. And branding is something which is related with the process or activity which is companies go through to making the brand, making the logo, sign, symbols, color, terms, letter. तो ये होता है बेसिकली, इसको कहते हैं ब्रांडिंग। ब्रांडिंग एक स्ट्रैटेजी है, एक प्रोसेस, एक एक्टिविटी है जो कंपनी करती है ताकि वो लोगो वगैरह बना सके। और ब्रांड क्या है? ब्रांड एक लोगो है, साइन है, सिंबल है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ब्रांडिंग में ING लग गया, इसका मतलब वहां एक्टिविटीज और प्रोसेस आ गया। याद रखिएगा हमेशा ये चीज, जो कंपनी लगाती है किसी भी ब्रांड को या प्रोडक्ट की सिंबल को बनाने में, बिकॉज दिस इज द वे ऑफ एडवर्टीजमेंट। ये जो कलर कॉम्बिनेशन और एक यूनिक कलर का जो कॉम्बिनेशन और एक ब्यूटी होगा आपके लोगो में, लेटर में, या फिर एक कलर होगा जो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। सो बेसिकली दिस इज अ टाइम टेकिंग एफर्ट। अभी तो मैं सिर्फ टर्मिनोलॉजी बता रही हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांडिंग। फिर हम ब्रांड इक्विटी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर रूरल मार्केट की तरफ भी मूव ऑन कर जाएंगे कि वहां पर ब्रांडिंग के लिए क्या क्या चीजें यूज होती है, क्या क्या तरीके यूज होते हैं।
किसी को कुछ पूछना है समझ एग्जाम्पल में लोगो देख सकते हैं, बहुत अलग अलग टाइप है। यूएस पोलो में हमेशा एक पर्सन जो है वो हाउस राइडिंग पे एंड दे आर प्लेइंग समथिंग गेम, मुझे नहीं पता, वो आउट ऑफ इंडिया का ब्रांड है, बट इंडिया में भी ज्यादातर जो लोगो हैं वो बहुत अट्रैक्टिव हैं, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं उसके, दूर से या यू आर एबल टू आइडेंटिफाई। एंड ब्रांड इज अ काइंड ऑफ द ब्रांड जो है ना, वो एक चीज और भी शो करता है, लोगों का स्टेटस, लाइक वट एवर ब्रांड यू आर, वो तो टोटली डिपेंड करता है कि ब्रांड इक्विटी या ब्रांड वैल्यू कैसी है उस पर्टिकुलर ब्रांड की। बट अगर वेन एवर यू आर परचेजिंग द प्रोडक्ट एंड यू आर, लिवाइस देख लीजिए, तो लाइक लिवाइस में कोई भी ऐसा जो ब्रांड नहीं, उसमें कुछ भी लोगो नहीं है, बट द नेम इज रिटन इन द रेड, LEVIS, right? So the way they are basically showing the product, they are using that is for identification के लिए, और साथ साथ में कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए। तुम लोग का मार्केटिंग मैम ग्रेजुएशन में मार्केटिंग पूरी। So actually में brand is a kind of asset for the company, and I think asset everyone knows, asset of the company, and in a successful company जो brand value होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ब्रांड लॉयलिटी बहुत ज्यादा होता है। ब्रांड लॉयलिटी का मतलब कंज्यूमर जो है वो आप ही के प्रोडक्ट को रिपीटेटिव वे में परचेज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा कोई भी कंपनी जो है कि स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग करना चाहती है अपने पर्टिकुलर कंपनी का, स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग, और जो भी साइन वगैरह यूज करना चाहती है वो स्ट्रांगली, मतलब बोल सकते हैं आइडेंटिफाई करवाने के लिए और मार्केट में स्प्रेड करने के लिए एक अच्छा ब्रांड होना बहुत जरूरी है। साथ साथ में एक टर्म आता है ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी का मतलब क्या है? अच्छा, हम मैं एग्जांपल देती हूँ। टाइटन है, टाइटन किसका ब्रांड है? किसका प्रोडक्ट है टाइटन? टाटा। वेरी गुड, टाटा का प्रोडक्ट है, टाटा का टाइटन है, टाटा का तनिष्क है। अच्छा एक बात बताओ कि जो टाटा है उसका टाइटन है, ठीक है, और एक रोलेक्स है। अब आप बताओ कि किसकी ब्रांड इक्विटी या ब्रांड वैल्यू ज्यादा है, रोलेक्स की या टाइटन की? इंडिया किसकी में। ब्रांड वैल्यू ज्यादा है, टाइटन की या रोलेक्स की? इंडिया में टाइटन की। परचेजिंग के हिसाब से कहा जाए तो टाइटन की, लेकिन रोलेक्स की क्यों नहीं है? उसका रीजन है कि रोलेक्स बहुत एक्सपेंसिव वॉच है एंड द पीपल आर नॉट एबल टू बाय दैट, राइट। बट अगर मैं सिर्फ वैल्यू की बात करूं या ब्रांड की वैल्यू की बात करूं तो ब्रांड की वैल्यू सबसे ज्यादा हाई रोलेक्स की है। When we are talking about the brand equity, it related with the brand value, यानी आपके ब्रांड का क्या वैल्यू है। Whenever I saw the Jaguar, the what comes in my mind that it is a very expensive car, right? अरे wow, beautiful and all. So how I identify it? Definitely not by the design, but by the symbol जो Jaguar में बना होता है, वो symbol that help me to identify that this is a Jaguar. And ये आते के साथ एक दिमाग में प्रीमियम क्वालिटी, एक स्टेटस, एक स्टैंडर्ड, सबके बारे में वी आर थिंकिंग अबाउट इट, राइट। सो ब्रांड इक्विटी समथिंग विच इज रिलेटेड विद द वैल्यू। जब भी प्रोडक्ट मार्केट में एक्सेसिव स्प्रेड हो जाए, प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो, तो ऐसे केस में आपकी ब्रांड इक्विटी कंपैरेटिवली टू अदर ब्रांड आपकी हाई होती है। तो ब्रांड इक्विटी क्या है, लिखिए, ठीक है। ब्रांड इक्विटी क्या है? ठीक है, हर एक ब्रांड का एक पावर और एक वैल्यू है मार्केट में, और एक पावरफुल ब्रांड का हमेशा क्या होता है, हाई ब्रांड इक्विटी होता है। लिखिए, अ पावरफुल ब्रांड हैज हाई ब्रांड इक्विटी, अ पावरफुल ब्रांड हैज हाई ब्रांड इक्विटी, अ पावरफुल ब्रांड हैज हाई ब्रांड इक्विटी। आगे लिख सकते हैं कि ब्रांड इक्विटी is the value of brand equity is the value of the brand and positive differential. A brand equity is a value of the brand and a positive differential effect that knowing the brand name
has on, knowing the brand name has on consumer response to the product, consumer response to the product or service, consumer response to the product or service, consumer response to the product or service. ब्रांड इक्विटी का मतलब यही होता है कि क्या पावर है आपके ब्रांड का, क्या वैल्यू है, कितने लोग आपके ब्रांड के बारे में जानते हैं, आपका ब्रांड कितना ओल्ड है, यानी कि आपका प्रोडक्ट जो आप मार्केट में सेल करें कितना ओल्ड है, ठीक है। साथ साथ में ये एक डिफरेंट टाइप का रिस्पॉन्स क्रिएट करता है कंज्यूमर के बीच में कि आप जो है ना वो ब्रांड की इक्विटी और वैल्यू के हिसाब से ना आप प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, जैसे कि एक बजाज है, बजाज का एक मैंने फैन लेना था, ठीक है। अब बजाज इज देयर, ठीक है, एंड सम न्यू कंपनीज नेम, कुछ ओपरा एंड समथिंग, आई डोंट नो इट्स नेम। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंपनीज आई फाउंड, दैट वन इज बजाज एंड वन इज ओपरा, राइट, एंड दे आर सेलिंग द फैन फॉर 1500 एंड मान लीजिए कि जो मुझे पसंद आया वो 1700 का है। विच प्रोडक्ट आई एम गोइंग टू बाय, बजाज और दैट ओपरा और समथिंग, व्हाटएवर द नेम इज, व्हाट डू यू थिंक, विच प्रोडक्ट आई एम गोइंग टू बाय? Bajaj. Why I am going to purchase Bajaj? Either I am getting 200 discount in the particular different company, because the thing is that is a trust, एक ट्रस्ट है मेरा ब्रांड के लिए। ब्रांड इक्विटी कितना स्ट्रॉन्ग है, यानी ब्रांड की वैल्यू बजाज की ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली टू दैट लोकल वन, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू परचेज द बजाज वाला फैन, ठीक है। अगर आप लोग भी ईयरफोन वगैरह खरीदते होंगे, अगर आप ईयरफोन खरीद रहे हैं और आपके पास दो ऑप्शन आएगा, लाइक Pitron, there is one company that they are selling the cheap earphones, right, and the another is like Boat or Skull Candy or something, then in that case, or JBL, and the price is little bit different, like you are going to purchase the product of the renowned one, like आप JBL, Boat और ये सब में से खरीदेंगे, या तो अगर दो अच्छे कंपनी के बीच में भी अगर जब कंपैरिजन करना हो तो उसमें भी फिर आप क्वालिटी फीचर्स पे ध्यान दीजिएगा, बट अकॉर्डिंग टू ब्रांड आप सबसे पहले उन प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर दीजिएगा जो कि आपका ब्रांड के हिसाब से आपके दिमाग में उसका कोई इमेज नहीं बना हुआ है। आपका रिस्पॉन्स क्या होगा कि अरे ये कौन सी कंपनी है, तो लोकल कंपनी है, और आप अवेयर नहीं होंगे उस प्रोडक्ट या फिर उस कंपनी के बारे में। तो ऐसे केस में हमेशा क्या होगा कि आप बेटर प्रोडक्ट के लिए बेटर ब्रांड इक्विटी वाले कंपनी की तरफ बढ़ेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि वही ब्रांड पावरफुल और वैल्यूएबल है जिसके बारे में हर कंज्यूमर्स को ज्यादातर पता है, यानी ब्रांड अवेयरनेस बहुत स्ट्रांग है, ब्रांड के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा पता है, आपकी कंपनी को देखकर ही आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो ऐसे जो पर्सन, ऐसे कंज्यूमर का रिस्पॉन्स हमेशा पॉजिटिव होगा आपकी कंपनी के लिए, क्लियर है ना। और जो नई कंपनी आती है, हमेशा नई कंपनीज आती है, वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई इट, राइट, because their advertisement is not strong, their branding strategy is not strong, so because of that also we are not able to identify those products। तो हमेशा हम स्ट्रॉन्ग वैल्यू वाले प्रोडक्ट की तरफ या स्ट्रॉन्ग वैल्यू जिस कंपनी के का हो उसके तरफ हम मूव करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, if we are purchasing the jewelry, if we have two options, either Tanishq and the second one is like the local shop, where we are going to move? If we want a qualitative product, we are not talking about the cheap product, right, we are talking about the qualitative product and the trustworthy brand, where we are going to move? We are going to move toward the Tanishq. Either they are taking the high cost for making and all, but still the quality confirmation is very strong of that company कि whatever you will purchase you will get the pure, right? So this is known as brand equity, यानी जहां पर brand equity से consumer का response जो है वो change होता हो, ठीक है। अगर आपका brand strong है, then you will go, the consumer is going to give the positive response towards your product or service. So that is known as brand equity. Anyone have doubt in brand equity? क्या होता है, क्या होता है brand equity? Brand equity क्या होता है? Ashutosh, yes, tell me. And brand equity is the powerful brand having a high brand equity, and it is also having
a positive response toward the consumer, and it Toward the also consumer or positive response of the consumer toward the brand? yes ma'am, toward positive response of the product to the consumer, and also it shows the consumer daily needs and all. Anyone else who is going to elaborate the brand equity क्या होता है? Brand equity क्या होता है? What is the meaning of brand equity? प्रिया बताइए brand equity क्या है? Ma'am, brand equity have a very powerful equity का मतलब होता है that is a basically value of the brand, value of the brand and the positive attitude of consumer toward your brand. ठीक है, that is brand equity. Brand equity का मतलब क्या होता है? That is a value of your product or services or value of the brand. ठीक है, आपके प्रोडक्ट आपके ब्रांड का जो वैल्यू है, जैसे मैंने क्या बताया, जैगुआर है, एक सिंबल ही तो बना हुआ है, क्या है ऐसा चीज कि मैं देखकर इतना अट्रैक्ट हो गई एंड वी आर थिंकिंग ऑफ द प्रीमियम कंज्यूमर. द रीजन इज द ब्रांड इक्विटी. लाइक वी नो कि दैट जैगुआर इज अ ब्रांड, तो ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली ये बनाते हैं, बहुत एक्सपेंसिव कार होते हैं. ठीक है, टच करने में भी वी आर स्केयर्ड, राइट, कि बहुत एक्सपेंसिव है, कहीं इसको दाग ना हो जाए जैगुआर को. वी आर लाइक दैट ओनली. Why we are just thinking about it? Because of the brand equity, right? The value. Why we are purchasing the good brand product? Because we know that they are this product is means a renowned one. ये renowned है, reputed brand है. ठीक है, तो brand equity के साथ क्या क्या जुड़ा होता है? Value, reputation, consumer की loyalty, फिर trust, ये सारी चीजें जो है वो brand equity के साथ जुड़े होते हैं. अब ब्रांड इक्विटी बनाने में क्या क्या हेल्प, ब्रांड इक्विटी कैसे बनता है, कैसे बनेगा ब्रांड इक्विटी, यानी ब्रांड का वैल्यू कैसे इंक्रीज होगा, हाउ ब्रांड वैल्यू विल बी इंक्रीज. ब्रांड का वैल्यू कैसे कैसे इंक्रीज होगा? ब्रांड की लॉयलिटी से. जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, मैंने एक प्रोडक्ट नया निकाला, मेरा कोई ब्रांड का नाम नहीं पता, किसी को लोग नहीं जानते हैं, बट जैसे ही मेरे प्रोडक्ट को लोगों ने यूज करना शुरू किया, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने खरीदना शुरू किया, ब्रांड लॉयलिटी की वजह से वो क्या हुआ, एक तरीके से प्रमोशन होने लगा मेरे प्रोडक्ट का. बोट जब मार्केट में आया था ना, बोट, BOAT, बोट ईयरफोन, तो इंडिया में जैसे वो मार्केट में आया तो आपको क्या लगता है कि तुरंत से लोग मूव ऑन कर गए होंगे उसे खरीदने के लिए? नहीं, धीरे धीरे लोगों ने उसको ट्राई किया, बोला नहीं बहुत अच्छा है, फिर कुछ सेलिब्रिटीज उसके साथ जुड़ गए जैसे नेहा कक्कड़ एंड ऑल. नाउ उसकी ब्रांड इक्विटी बढ़ने लगी, धीरे धीरे उसकी वैल्यू इंक्रीज होने लगी, एंड नाउ बाकी सारे कंपनीज जो भी हैं, जैसे MI वगैरह है या फिर जो आपके JBL स्कल कैंडी वगैरह है, उन सबको टक्कर देने लगा कौन? बोट कंपनी. लाइक MI, सैमसंग का तो कोर प्रोडक्ट कभी से ये नहीं रहा है ईयरफोन, उसका तो फोन रहा है, मोबाइल फोन रहा है उसका ज्यादातर कोर प्रोडक्ट. लेकिन जो JBL और ये सब स्कल कैंडी है ना, ये सब प्योर ईयरफोन की कंपनीज हैं, उनके साथ ही compete करने लगा. और बोट भी जो है वो प्योर, अभी तो वो स्पीकर्स वगैरह भी निकाल रहे हैं, स्पीकर्स वगैरह भी आ गए उसके. तो यही मैं बता रही हूँ आपको कि ब्रांड इक्विटी को बनाने में सबसे पहले हेल्प कौन करता है? ब्रांड लॉयलिटी. जब कस्टमर जो है वो ब्रांड नेम और सिंबल वगैरह से ब्रांड को देखेंगे, समझेंगे, खरीदने लगेंगे प्रोडक्ट को, तो वो आपके प्रोडक्ट के बारे में गुडविल स्प्रेड करेंगे मार्केट में कि भाई ये पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट लीजिए, ये प्रोडक्ट जो है इस कंपनी का बहुत अच्छा है, बोट का बहुत अच्छा है. तो ऐसे केस में ब्रांड लॉयलिटी इंक्रीज होगा. तो पहला फैक्टर है ब्रांड इक्विटी को डेवलप करने का, वो है ब्रांड लॉयलिटी. यानी आपकी ब्रांड का वैल्यू तब बढ़ेगा जब ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे. पहला तो ये हुआ. सेकेंड हुआ नेम अवेयरनेस, यानी आपके ब्रांड का नाम के बारे में लोगों को जानकारी हो, लोग अवेयर हो. ठीक है, अवेयरनेस की वजह से क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आपके कंज्यूमर्स आएंगे. जैसे अवेयरनेस के लिए आप क्या कर सकते हो? आप एडवर्टीजमेंट करा सकते हो. ठीक है, कि प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज करा रहे हैं. जैसे ही प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट होगा, और बोल सकते हैं कि एग्रेसिवली एडवर्टीजमेंट होना शुरू हो गया हर एक जगह पे, इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे, वैसे ही लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में धीरे धीरे जानने लगेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला तो कस्टमर बनाइए, यानी ब्रांड लॉयलिटी लाइए. दूसरा जो है नेम अवेयरनेस, यानी अपने नाम को, अपने ब्रांड का नाम चारों तरफ उसको स्प्रेड कीजिए, लोगों आपके प्रोडक्ट के बारे में जाने. ठीक है,
अब जैसे वीवो वालों ने और ओप्पो वाले ने क्या किया था, सबसे ज्यादा वीवो वाले ने क्या किया था अपने प्रोडक्ट की ब्रांड बनाने के लिए, जब वो नया नया एंटर हुआ था इंडिया में, उस समय ऑलरेडी सैमसंग का मार्केट था, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया पता है, उन लोगों ने क्या किया था, हर जगह पे होर्डिंग और वो बड़े बड़े बिलबोर्ड्स बनाने शुरू कर दिए, लगाने शुरू कर दिए। अब जहां जाइएगा, स्टेशन पे जाइएगा, चाहे कहीं पर जाइएगा, आपको वीवो दिखेगा, वीवो वीवो। और जब 20-25 बार आप वीवो देख लेंगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो परसेप्शन बैठ जाएगा कि वीवो एक मोबाइल की कंपनी आई है। और आप जब भी आपको मोबाइल खरीदना होगा, यू विल स्टार्ट इंक्वायरिंग अबाउट दैट कि अरे वीवो नया मोबाइल देखा था, एक ब्रांड, कैसा मोबाइल है वो। तो लाइक दिस इज अ वे ऑफ क्रिएटिंग द अवेयरनेस, और अपने नाम या बोल सकते हैं अपने ब्रांड के नाम को स्प्रेड करना, ठीक है। ब्रांड के नेम को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना, उसके लिए आप एडवर्टीजमेंट वगैरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड, आप किस तरीके से ब्रांड की इक्विटी बना सकते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करके। मान लीजिए कि आपका कंज्यूमर आ गए, कंज्यूमर ने प्रोडक्ट को परचेज भी कर लिया, बट प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्या लगता है लॉन्ग टर्म तक वो प्रोडक्ट खरीद पाएंगे आपके? छोड़ देंगे कुछ दिनों बाद, एक बार खरीदने के बाद दे आर नॉट गोइंग टू take that or purchase that product again. So the third thing, that what is the perceived quality, यानी कि एक वेल नोन ब्रांड हमेशा अपनी इमेज को कैसे बनाए रखता है, कैसे क्रिएट करता है, जब आप उनको गुड्स भी वैसी ही क्वालिटी का प्रोवाइड करें, जो ड्यूरेबल हो, ठीक है, इकोनॉमिकल हो, डिपेंडेबिलिटी मतलब एक तरीके से अच्छी क्वालिटी की हो, जो चले, टिकाऊ हो, ज्यादा बहुत एक्सट्रीम एक्सपेंसिव भी ना हो, नॉर्मल हो। तो ये सारे तरीके से, एक तरीके से क्या हो सकता है, क्वालिटी के हिसाब से आप अपनी ब्रांड इक्विटी बना सकते हैं। एग्जाम्पल में आप नोकिया ले लीजिए, नोकिया जो है वो उसने क्या किया था, अपने प्रोडक्ट को इतना कैसा बनाता था, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट होते थे उसके, अगर वो गिर भी गया मोबाइल तो दैट इज नॉट गोइंग टू ब्रेक, राइट। तो ये एक क्वालिटी जो था, क्वालिटी की गारंटी भी किसको देनी चाहिए, कंपनी को, किसे, कंज्यूमर को। एंड द फोर्थ इज कि लाइक ब्रांड एसोसिएशन वगैरह, जैसे कि आप किस तरीके से इमोशनल चीजें उसके साथ अटैच कर रहे हो, ब्रांड के नाम के साथ आप क्या क्या चीजें अटैच कर रहे हो, ठीक है, पर्सनालिटी कैसा बना रहे हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ कुछ स्टेटमेंट हमेशा यूज होते हैं प्रोडक्ट के साथ, ठीक है, डर के आगे जीत है, तो ये दीज आर द बेसिकली इमोशनल स्टेटमेंट। लाइक आपको एक इमोशनल स्टेटमेंट या फिर एक क्या ब्रांड के साथ एसोसिएट कर रहे हो, टैगलाइन, स्टेटमेंट्स एंड ऑल, राइट। तो ये सारे तरीके से आप अपने ब्रांड के बारे में जागरूकता, अवेयरनेस, लॉयलिटी वगैरह से आप क्या कर सकते हो, फाइनली आप ब्रांड की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो। तो इसमें मैंने ब्रांड इक्विटी के 4 चीजें बताई हैं। ब्रांड लॉयलिटी के थ्रू इंक्रीज कर सकते हो ब्रांड इक्विटी, नेम अवेयरनेस के थ्रू, परसीव्ड क्वालिटी यानी क्वालिटी कैसा कंज्यूमर को चाहिए वैसा ही कंज्यूमर को क्वालिटी आप प्रोवाइड कीजिए, परसीव्ड क्वालिटी। एंड द फोर्थ वन इज ब्रांड एसोसिएशन। ब्रांड एसोसिएशंस में आप वही टैगलाइंस, स्टेटमेंट्स, ठीक है, एक ब्रांड पर्सनालिटी को आप कैसा शो करते हो, जैसे रेड एंड टेलर हो गया, ठीक है, या फिर आप ये ले सकते हो पार्कर पेंस हो गया। और एक दो चीज, जब भी आप जाते होंगे सिनेमा हॉल में तो आप वहां देखते होंगे कुछ कपड़ों वगैरह का वहां पर बहुत ज्यादा क्या होता है, एडवर्टीजमेंट होता है। तो एक पर्सनालिटी आप क्या शो कर रहे हैं, क्या टैगलाइन यूज कर रहे हैं, कि आपके प्रोडक्ट जो है वो कुछ प्रीमियम कंज्यूमर्स के लिए है। तो इस तरीके से बेसिकली आपको एक ब्रांड एसोसिएशन भी क्रिएट करना है। यस, यानी कि पर्सनालिटी, जैसे मान लीजिए कि ऐसा नहीं शो करते कि जैसे लिवाइस, अब दीपिका शी इज बेसिकली एडवर्टाइजिंग अबाउट लिवाइस, शी इज शोइंग अ एम्पावर्ड वुमेन, लाइक एक एम्पावर्ड वुमेन के बारे में एक मैसेज दे रही है, एक पर्सनालिटी शो कर रही है कि व्हेन यू विल buy this or when you will use it, how you will look। तो बेसिकली एक तरीके से एक पर्सनालिटी आप कैसा डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट को यूज करने के बाद क्या पर्सनालिटी शो होगा, आप क्या टैगलाइन यूज कर रहे हैं। तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द ब्रांड एसोसिएशन। देखो 4 चीजों से ब्रांड इक्विटी बनती है। ब्रांड लॉयलिटी यानी आपके कितने कंज्यूमर्स बन रहे हैं, नेम अवेयरनेस, थर्ड है आपका परसीव क्वालिटी क्या दे रहे हैं, चौथा है ब्रांड एसोसिएशन। तो ऑल दीज थिंग्स, 4 थिंग्स कम्स अंडर द ब्रांड इक्विटी, यानी ब्रांड इक्विटी आप ऐसे क्रिएट करते हैं। क्लियर है? तो
किसी को कोई डाउट है कि ब्रांड इक्विटी कैसे क्रिएट होता है, यानी ब्रांड की वैल्यू हम कैसे बढ़ाते हैं प्रोडक्ट का? जब ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को यूज करने लगे, लॉयलिटी जितनी बढ़ती जाएगी ब्रांड की, जितनी कंज्यूमर्स आपके ब्रांड को यूज करना शुरू करेंगे, जितना सेल होगा, उतना ज्यादा आपके प्रोडक्ट की वैल्यू, या कह सकते हैं आपके ब्रांड की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, कोई कुछ पूछना चाहता है इस बारे में? एनीवन हैव एनी डाउट? तो नेक्स्ट